ٹیوٹوریلز. آج ہمارا دوسرا لیکچر ہے سیم چیپٹر سیکشن 1.1.4 اور 1.1.5 کو کنٹینیو کرتے ہیں. سو لیٹ اسٹارٹ. سو ماڈرن یوز آف کمپیوٹر ان ٹوڈیز لائف. ٹھیک ہے, جو ماڈرن یعنی جدید استعمال کمپیوٹر کا آج کل کے زمانے میں یا لائف میں, زندگی میں آج کل کا جو زندگی چل رہی ہے. سو اٹ ریفرس ٹو ویرائٹی آف اسمال پورٹیبل ڈیوائسز. ٹھیک ہے, یہ جو پورٹیبل ڈیوائس ہوتے ہیں چھوٹے, یعنی موبائل ہو گیا, ٹیبلٹ ہو گیا, اس کو یہ کیا کرتا ہے, ہمیں ایکسس دیتا ہے ڈیٹا کا یا انفارمیشن دیتے ہیں کہیں سے بھی. ہم تھرو وائی فائی اس کو کنیکٹ کرتے ہیں نیٹ ورک کے ساتھ اور وہ ہمیں انفارمیشن دیتا ہے. جو موبائل کمپیوٹنگ ڈیوائس ہیں یہ زیادہ تر بیٹری پہ چلتے ہیں. اس کو ہم چارج کہتے ہیں چارجیبل بیٹری. کے پاس لیتھیم کی بیٹری ہوتی ہے یا سیلز ہوتے ہیں. جو کچھ جو پرانے ڈیوائسز تھے اس میں سیلز ہوتے ہیں, بٹ آج کل چارجنگ والے ہیں سارے. تو اس کو ہم کمپیوٹنگ ڈیوائسز کہتے ہیں. زیادہ تر یہ ہمارے پاس ٹیبلٹس کی فارم میں ہوتے ہیں یا موبائل اسمارٹ فونز کی ہوتے ہیں یا پی ڈی ایف پرسنل ڈیجیٹل اسسٹنٹ ہوتی ہیں, جس طرح کے ڈیجیٹل ڈکشنری ہوتی ہیں یا مختلف دوسرے ٹائپ کے پی ڈی ایز ہوتے ہیں ڈیجیٹل اسسٹنٹ, چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس کیا ہے, یہ ماڈرن یوز آف کمپیوٹرز ہوتے ہیں, کیونکہ ایک ہم نے لاسٹ پڑھا تھا کمپیوٹنگ ڈیوائس. سو موبائل کمپیوٹنگ ڈیوائس جو ہے, یہ ڈیوائسز ہماری زندگی کو کیا کرتے ہیں, آسان کرتا ہے. سیکنڈ ہے ہمارے پاس انٹرنیٹ آف تھنگس. ٹھیک ہے, آئی او ٹی جس کو ہم ان شارٹ کہتے ہیں. یہ کیا کہتا ہے, انٹر کنیکشن بٹوین کمپیوٹر نیٹ ورک اینڈ فزیکل ڈیوائسز ٹو کلیکٹ اینڈ ایکسچینج ڈیٹا. اس میں آئی او ٹی میں ہم جتنے بھی ڈیوائسز ہیں, تھنگز مین اشیاء, چیزیں جو انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں اور ایک دوسرے میں انفارمیشن پاس کرتے ہیں, ڈیٹا پاس کرتے ہیں تھرو وائی فائی کنیکٹیویٹی ہوتے ہیں یا وائر کے تھرو ہوتی ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں انٹرنیٹ آف تھنگس. جتنے بھی ڈیوائسز ہیں, اور اس میں زیادہ تر امبیڈڈ وتھ سافٹ ویئر, سینسر. لاسٹ ہم نے پڑھا تھا کہ کسی بھی کمپیوٹنگ ڈیوائس میں سافٹ ویئر ہوتے, سینسر ہوتے, ایکٹیویٹرز ہوتے, کیمراز, مائکرو فونز اینڈ ادر انسٹرومنٹ دیٹ انیبل ٹو کلیکٹ اینڈ شیئر ڈیٹا. یہ آپ کو شکل میں دیے گئے. ہمارے پاس فریج ہے, واشنگ مشین ہے, لیپ ٹاپ ہے, ٹیبلٹ ہے, موبائل فون ہے, گاڑی ہے, ہمارے پاس مختلف کے اسکرین ہے, کیمراز ہے. یہ سارے ہمارے پاس جو ہیں انٹرنیٹ آف تھنگز بناتا ہے, کیونکہ اس کو ہم انٹرنیٹ کے تھرو کنیکٹ کرتے ہیں اور ہمارے پاس کیا آتا ہے, ڈیٹا آتا ہے. ہم ڈیٹا بیچ بھی سکتے ہیں اور ریسیو کر سکتے ہیں. سو ان تمام جو انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹیویٹی رکھتے ہیں, جو انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹ ہو سکتے ہیں, تو اس ٹائپ آف اس کو ہم کہتے ہیں انٹرنیٹ آف تھنگز. ٹھیک ہے, آل کائنڈز آف ہاؤس ہولڈ, جو ہمارے گھر میں چیزیں ہیں, آئٹمز, کین بی موڈیفائڈ ٹو ورک آن ان انٹرنیٹ تھنگز آف سسٹم, کیونکہ ہم اس کو انٹرنیٹ سے کنیکٹ کر سکتے ہیں. اور ان ڈیوائسز کو ہم کہتے ہیں اسمارٹ ڈیوائسز, کیونکہ جو بھی چیز انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہو سکتی ہے تو اس کو ہم اسمارٹ ڈیوائسز کہتے ہیں. دے آر ڈیزائنڈ ان سچ وے دے کین انٹریکٹ ود ہیومن بینگز تھرو وائرلیس کنیکشن. تو یہ ہم تھرو وائرلیس یعنی وائی فائی کے تھرو کنیکٹ کرتے ہیں یا بلوٹوتھ کے تھرو کنیکٹ کرتے ہیں. Popular application of IoT in future, it will allow us to switch on air conditioning before reaching home. فار ایگزامپل ہم جی پی ایس لوکیشن کے تھرو اگر آپ گھر آ رہے ہیں تو جیسے ہی آپ اس کو فاصلہ دے دیں کہ میں یہاں پر پہنچ کے, تو ہمارے گھر کا ایئر کنڈیشن جو اے سی ہے وہ سٹارٹ ہو جائے. تو اس طرح کی پاسبل ہے, سارے چل رہے ہیں, آلریڈی ڈیولپ ہو رہے ہیں. سوئچ آف لائٹس آفٹر لیونگ ہوم, جس طرح آپ گھر چھوڑ جاتے ہیں کیونکہ آپ کے موبائل سے وہ سگنل ریسیو کر دیتا ہے, تو آپ کی جو لائٹ ہوتی ہے سارے وہ آف ہو جاتی ہے. سو دیز آر آٹومیشن, یہ ہوم آٹومیشن یا اسمارٹ ہومز میں آتے ہیں. تو یہ سارے جو پاسبل ہیں, اٹس تھرو آئی او ٹی, انٹرنیٹ آف تھنگز. ریموٹلی ہم کنٹرول کر سکتے ہیں, اور موبائل کے تھرو بھی ہم اے سی کنٹرول کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ سارے آئی او ٹی سسٹم ہیں. جو نیکسٹ ہے ہمارے پاس ہے کلاؤڈ کمپیوٹنگ. کلاؤڈ جس طرح نام سے ظاہر ہے بادل کو کہتے ہیں. تو ہمارے پاس جو کمپیوٹنگ پاور ہوتا ہے, کمپیوٹنگ پاور مینز کہ جو ہم جس میں ڈیٹا پروسیس کرتے ہیں, جس طرح آپ کے پاس سی پی یو لگا ہوتا ہے, تو یہ سی پی یو کی بجائے ایک سینٹرل
में होता है, सेंट्रल में एक सर्वर होता है और उसके बहुत सारे सर्वर होते हैं, वो आपस में कनेक्ट होते हैं। जब हमें ज़्यादा डेटा होता है हमारे पास तो उस स्टोर करने के लिए भी, फॉर एग्जांपल हमारे जो कंप्यूटर है इसकी लिमिटेड कैपेसिटी होती है, तो उसमें हम क्या करते हैं कि हम क्लाउड को बेचते हैं। ज़्यादातर मैं स्टूडेंट को एग्जांपल देता हूँ कि जो फॉर एग्जांपल हमने कहीं से बंदों को शिफ्ट करना है एक जगह से, फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद से हमने शिफ्ट करने हैं कराची को। अब अगर 3-4 बंदे हैं तो हम छोटा कार यूज़ करते हैं। अगर 4 से ज़्यादा है, कोई 10, 12, 15 लोगों को हमने ट्रांसफ़र करना है, मूव करना है उधर, तो हम क्या करते हैं, हाई एस यूज़ करते हैं। इसी तरह अगर 40-50 हो तो बस यूज़ करते हैं। अगर इससे भी ज़्यादा हो तो इसके हम क्या करते हैं, बसों की तादाद को डबल करते हैं। तो सिमिलरली हर एक कंप्यूटर की कैपेसिटी होती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास डेटा जो पर्सनल कंप्यूटर है तो उसका 500 GB होता है या 1 टेराबाइट होता है, रैम होता है 16 GB, 8 GB। उसके अलावा अगर हमें प्रोसेसिंग चाहिए तो हमें क्या करना चाहिए, कंप्यूटर को डबल करते हैं, 2 कंप्यूटर, 5 कंप्यूटर, 10 कंप्यूटर। तो ये जो हमारे पास क्लाउड होता है, इसी तरह ये कंप्यूटरों का मजमुआ होता है, उसमें हजारों कंप्यूटर लगे होते हैं, वो सर्वर होते हैं। सर्वर मींस कि जिस तरह हम बस का एग्जांपल मैंने दिया, तो इस सर्वर मींस कि वो जो हाईएस्ट कैपेसिटी है, जो रोड की ट्रांसपोर्ट है, वो हमारे पास बस होती है, या मैक्सिमम अगर आप ट्रेन लेना चाहें तो इस तरह हमारे पास सर्वर होती है, उसकी कैपेसिटी हमारे घर के जो पर्सनल कंप्यूटर उससे ज़्यादा होती है। तो हमारे वो जो क्लाउड होता है, सर्वर होता है, उसमें जो स्टोरेज है वो लिमिटेड, बिलियंस ऑफ डेटा, गीगाबाइट स्टोरेज होता है, ये एप्लीकेशन होते हैं। तो ये सर्वरों का मजमुआ होते हैं। तो इनमें हमारे पास 3 टाइप के होते हैं, प्राइवेट क्लाउड, पब्लिक और हाइब्रिड। प्राइवेट जो कोई कंपनी अपना तौर पर बनाते हैं, पब्लिक जिस तरह हमारे पास गूगल क्लाउड है या अमेजोन है, वो आगे हम पढ़ते हैं। और इसी तरह हाइब्रिड होते हैं, कोई कंपनी वाले अपने भी यूज़ करते हैं और पब्लिक वाले को भी यूज़ करते हैं, हायर करते हैं। सो एप्लीकेशन भी हमारे पास उसमें अवेलेबल होते हैं। सो ये वर्क प्लेस होता है, ठीक है। Buying and installing your own computer system and software at your workplace. So you can get it as a service provided. ये आपको as a service provide करता है, managed by another company. आपने सिर्फ इस्तेमाल करना है, डेटा दे देना है, जिस तरह आप गूगल ड्राइव में डेटा सेव करते हैं। सो 1 टेराबाइट है, किसी का 15 GB फ्री होता है, इसके अलावा आप परचेस करते हैं 1 टेराबाइट, 2 टेराबाइट, 10 टेराबाइट, जितना भी आप परचेस करते हैं गूगल ड्राइव, तो आपने उसको मंथली बेस पे पेमेंट करनी होती है या एनुअल बेस पे, सालाना आप इसको पैसे जमा करते हैं। तो गूगल क्या करता है, आपके लिए डेटा सेव करता है। इसी तरह कंप्यूटिंग पावर, आपको प्रोसेसर चाहिए, आपके पास बहुत ज़्यादा डेटा है चाहिए, आपने किसी एल्गोरिथम को या कुछ कैलकुलेशन करवाना है मैथमेटिक्स का बहुत बड़े पैमाने पर, जिसके लिए 100 कंप्यूटरों की ज़रूरत है। तो आपको 100 कंप्यूटर खरीदने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको 1-2-4 घंटे के लिए चाहिए। तो आप गूगल क्लाउड या अमेजोन क्लाउड या माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड से क्या करके उसको रेंट आउट कर दे। क्योंकि जिस तरह मैंने मिसाल दी, अगर आपने इस्लामाबाद से लाहौर तक 200 बंदों को भेजना है, लेके जाना है, तो आप उसके लिए ये तो नहीं करते कि आप 4 बसेस खरीद ले। आप क्या करते हैं, रेंट आउट करते हैं 4 बसेस को, कि हमें मूव होना है, हमें ट्रांसफर करो इस्लामाबाद से लाहौर। तो इस तरह हम कंप्यूटर को, सर्वरों को क्या करते हैं, रेंट आउट करते हैं। पर मिनट, पर सेकंड के हिसाब से होते हैं, 1 घंटे के लिए चाहिए, 10 मिनट के लिए चाहिए, 2 घंटे चाहिए। तो इस फेनामेना को, इसको हम कहते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है। इसको दूसरी जबान में इट इज़ ए वे ऑफ आउटसोर्सिंग योर कंप्यूटिंग रिक्वायरमेंट्स, क्योंकि जितनी भी आपको रिक्वायरमेंट होते हैं वो आउटसोर्स एक दूसरा कंपनी आपको प्रोवाइड कर देता है। तो इसको हम क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग का फ़ायदा ये होता है कि आपको, जिस तरह मैंने एग्जांपल दिया, आपको बाई करने की ज़रूरत नहीं मेंटेन कम्प्लेक्स कंप्यूटर सिस्टम, क्योंकि अगर हमने 100 कंप्यूटर को एक दूसरे कनेक्ट करना है तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम बनता है, हमारे लिए एक पूरा नेटवर्क बनेगा। अगर 1000 कंप्यूटर चाहिए तो आपको और भी मज़ीद इनके लिए बंदों की ज़रूरत है। इसलिए हम क्या करते हैं, इसको क्लाउड से यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारा जो कॉस्ट होता है वो कम हो जाता है। Beside you are not worried about equipment. दूसरा ये फ़ायदा होता है कि आपने जब यूज़ करना है तो आपको किसी भी मेंटेनेंस या इंस्टॉलेशन की ज़रूरत नहीं होती, आप डायरेक्ट क्लाउड वाले को यूज़ करें, और वो सिक्योर्ड भी होता है, रिलायबल भी होते हैं। तो इसमें 3
चीज़ें होती है, एप्लीकेशन एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस और इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में कंप्यूट होता है, स्टोरेज होता है, जिस तरह मैंने गूगल ड्राइव के अंदर नेटवर्क होता है, ठीक है। सेकंड जो होता है प्लेटफॉर्म, उसमें स्टोरेज, इसी तरह आइडेंटिटी, जिस तरह गूगल ड्राइव, गूगल जीमेल वगैरह के थ्रू काम करते हैं। और पी होता है डेटाबेसेस होते हैं। एप्लीकेशन में हमारे पास कोलैबोरेशन होते हैं, जिस तरह एमएस वर्ड होता है, एक्सेल होता है, कम्युनिकेशन होता है, फाइनेंस के होते हैं या मॉनिटरिंग होते हैं। मुख्तलिफ टाइप के एप्लीकेशन होते हैं जो एक कंपनी के हज़ारों लाखों यूज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। और इस क्लाउड को ये फ़ायदा होता है कि आप मोबाइल के थ्रू कनेक्ट हो जाए, लैपटॉप के थ्रू, किसी सर्वर के थ्रू या डेस्कटॉप या टैबलेट, सारे हम क्या करते हैं, क्लाउड के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग की डिसएडवांटेज है कि दैट रिक्वायर्स रिलायबल हाई स्पीड ब्रॉडबैंड, कि आपका जो कनेक्शन होता है उसका स्पीड होना चाहिए, क्योंकि जब आप डेटा ट्रांसफ़र करते हैं, उसको अपलोड करते हैं या डाउनलोड करते हैं, तो उसके लिए आपको चाहिए थोड़ा सा एक डिसएडवांटेजेस है कि आपको जो इंटरनेट है वो हाई स्पीड होना चाहिए। और दूसरा जो है वो अनदर डिसएडवांटेज इज प्राइवेसी, क्योंकि आपका डेटा उस कंपनी के सर्वर पर होता है, अगर उस कंपनी चाहे तो आपकी डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, तो ये एक सिक्योरिटी रिस्क है। बट नॉर्मली जो बड़े कंपनी है उसमें वो डेटा इनक्रिप्टेड फॉर्म में होते हैं, ठीक है। और इसकी लोकेशन भी अनडिफाइंड, क्योंकि गूगल के अब फॉर एग्जांपल सेंटर हैं, डेटा सेंटर तो काफ़ी फैले हुए हैं पूरी दुनिया में। सो कंपनीज दोस्त ऑफर, उसमें जो टॉप 10 क्लाउड प्रोवाइडर है उसमें गूगल है, सबसे जो टॉप पे है वो अमेजोन है, AWS अमेजोन, और दूसरा है एजोर, माइक्रोसॉफ्ट का है माइक्रोसॉफ्ट एजोर, तीसरा गूगल क्लाउड है, चौथा अलीबाबा है, इसके बाद सेल्स फोर्स है, डेल है, IBM है, डिजिटल ओशियन है, ओरेकल है और ड्रॉप बॉक्स है याहू का। तो ये सबसे बड़ी कंपनीज हैं जो क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। इसके अलावा डेटा सेंटर क्या होता है? डेटा सेंटर हमारे पास सेंट्रलाइज लोकेशन, लास्ट भी हमने देखा कि गूगल के डेटा सेंटर होते हैं, तो इस तरह क्लाउड के उन्होंने डिफरेंट लोकेशन पर, जिस तरह एक एशिया में बनाई, एक अमेरिका में बनाई, 2-4 इसी तरह अफ्रीका में बनाई, इस तरह से ऑस्ट्रेलिया में बनाई, तो उन्होंने डेटा सेंटर बनाए होते हैं। तो उसमें डेटा स्टोर होता है, मुख्तलिफ प्रोसेस भी होता है, कलेक्ट भी होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, क्योंकि वो जो सर्वर होते हैं, राउटर, स्विच, बैकअप इक्विपमेंट, ये सारे इसके थ्रू कनेक्ट होता है। और इसके लिए काफ़ी एयर कंडीशन सिस्टम की होता है, क्योंकि ये हीट जनरेट करता है, बहुत ज़्यादा गर्मी हीट क्रिएट करता है कमरे के अंदर। तो उसमें हम ज़्यादातर क्या होते हैं, उसके लिए काफ़ी बड़े एयर कंडीशन लगे होते हैं, सेंट्रलाइज्ड फायर सप्रेशन, आग को बुझाने वाले, स्मोक डिटेक्शन, सिक्योरिटी की बड़ी टफ सिस्टम होती है। ये जो आपको शक्ल में नज़र आ रही है ये डेटा सेंटर है, इसमें इतने ज़्यादा सर्वर होते हैं जो हीट करते हैं, दिन रात 24 घंटे चलते हैं। ये ज़्यादातर गवर्नमेंट के एजेंसीज या डिपार्टमेंट या बैंक्स, एजुकेशनल, टेली कम्युनिकेशन कंपनीज, सोशल नेटवर्किंग जिस तरह फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम, इनके डेटा सेंटर होते हैं, उसमें यूज़ होता है, क्योंकि उनमें पिटाबाइट के हिसाब से डेटा रोज़ाना स्टोर होता है। ज़्यादातर जो कंपनीज होते हैं मूविंग देयर डेटा सेंटर टू क्लाउड सर्विस, क्योंकि उसका डेटा सेंटर क्लाउड भी होता है, टू कट द कास्ट। फॉर एग्जांपल उसने सर्विसेज ली है, जिस तरह इंस्टाग्राम हो गया, या तो उस फेसबुक के अपने डेटा सेंटर हैं। अगर कोई छोटी कंपनी या कोई बैंक वाले लेना चाहे तो वो इस तरह गूगल से या माइक्रोसॉफ्ट से क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विसेज ले सकते हैं। इसके बाद है हमारे पास कंप्यूटर हार्डवेयर इन सॉफ्टवेयर। तो कंप्यूटर हार्डवेयर क्या है? इसमें एक तीसरा भी होता है फर्मवेयर, बट आपके कोर्स में नहीं दिया गया है, तो चलो हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को ही पढ़ते हैं। फिजिकल कंपोनेंट्स जो होते हैं हमारे पास, जिस तरह मॉनिटर, कीबोर्ड, हार्ड डिस्क, रैम, प्रोसेसर, ठीक है, ये सबको हम क्या कहते हैं? कंप्यूटर हार्डवेयर। जो भी आपको फिजिकली, जिसको आप टच कर सके और उसको आपको आंखों से देख सके, उसको हम क्या कहते हैं? हार्डवेयर। इन सिंपल वर्ड, ऑल टेंजेबल पार्ट, टेंजेबल मींस जिसको आप टच करें, महसूस कर सके, उसको हम टेंजेबल कहते हैं, आर रिफर्ड एज हार्डवेयर। इसको हम ये आपको शक्ल में दिए, ये सारे क्या है हमारे पास? हार्डवेयर है।
सो दूसरा होता है हमारे पास सॉफ्टवेयर. सॉफ्टवेयर इज एनी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन आर कॉल्ड आल्सो कॉल्ड प्रोग्राम्स. ये प्रोग्राम्स होते हैं स्पेशलाइज्ड डिजाइन किए होते हैं विच आर गिवन टू कंप्यूटर टू परफॉर्म एनी टास्क और एक्टिविटी. इट टेल्स कंप्यूटर, ये कंप्यूटर को बताता है कि आपने क्या करना है. प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होते हैं जिस तरह हमारे पास सी हो गया, सी प्लस प्लस हो गया, जावा हो गया, पाइथन हो गया, किसी भी लैंग्वेज में ये डेवलप किए जाते हैं. द कंप्यूटर कैन नॉट डू एनीथिंग ऑन इट्स ओन. क्योंकि कंप्यूटर हमारे पास वो हार्डवेयर है फिजिकल, वो अपने आप कुछ नहीं कर सकता है. ज़्यादातर हम क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर उसमें इस्तेमाल करते हैं. और ये सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, टू डू ए डिज़ायर जॉब, जिस मकसद के लिए बनाया गया वही काम करते हैं. इट इज़ नेसेसरी टू स्पेसिफाई सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन विच ए कंप्यूटर मस्ट परफॉर्म टू सॉल्व ए प्रॉब्लम. फॉर एग्जाम्पल वर्ड प्रोसेसिंग. तो जिस तरह ये अब वर्ड प्रोसेसिंग है, एम एस वर्ड है आपने देखा होगा, या पावर पॉइंट है, या इसी तरह एक्सेल शीट है, या नोट पैड है, जी मेल है, इसी तरह एंटीवायरस है, लिनक्स है, जावा है, विंडोज़ है. तो जिस तरह कंप्यूटर चलाने के लिए हम विंडोज़ इंस्टॉल करते हैं माइक्रोसॉफ्ट की, तो ये एक सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट, क्योंकि इसके बगैर ये नहीं चलता है. उसके बगैर हम ज़रूरी जो हमारी एप्लीकेशन है वो नहीं चल सकती. इसी तरह एम एस वर्ड में हम लेटर लिखते हैं, किताब लिखते हैं, थीसिस लिखते हैं, बहुत सारा काम क्या हम करते हैं एम एस वर्ड में करते. तो इसका यही फंक्शनलिटी होता है. तो इसकी जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो इसी पर्पस के लिए होता है. इसी तरह पावर पॉइंट जो हमें स्लाइड बनाता है, तो इनका जो प्रोग्राम लिखा गया, प्रोग्राम मीन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो कंप्यूटर को हम देते हैं एज ए इनपुट, तो वही होता है. इसी तरह जो क्रोम है हमारे पास, ये भी एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जो हम इंटरनेट के साथ कनेक्ट करने के बाद वेबसाइट को विजिट करते हैं. तो ये सारे हमारे पास क्या है, सॉफ्टवेयर. आपके पास क्वेश्चन आ सकता है डिफरेंशिएट बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. तो इस तरह आप एक टेबल बना सकते हैं. हार्डवेयर फिजिकल पार्ट होता है और सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है विच इज एग्जीक्यूटेड बाय सीपीयू. प्रोग्राम को हम देख नहीं सकते हैं, इट कैन नॉट बी टच. और जो हार्डवेयर उसको हम टच करते हैं. हार्डवेयर टेंजेबल होता है यानी महसूस कर सकते हैं. टेंजेबल मीन्स मादी यानी ठोस, ये सॉलिड होते हैं. सॉफ्टवेयर इंटेंजेबल यानी गैर मादी होते हैं जिसको हम महसूस या टच नहीं कर सकते. हार्डवेयर परफॉर्म एनी टास्क विदाउट सॉफ्टवेयर. हार्डवेयर कुछ ना कुछ कर सकते हैं, जिस तरह हम जो रोम होता है उसमें फिक्स होते हैं तो स्टार्ट होता है, या हम इसमें जो डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें हम लिख सकते हैं. तो सॉफ्टवेयर जो होते हैं बेसिकली वो कुछ स्पेशलाइज्ड होते हैं जो हार्डवेयर के बगैर नहीं, क्योंकि इसको हम टच भी नहीं कर सकते हैं. तो जिस तरह वो हवा में या दिमाग में आपके सोच होती है, इसका मिसाल इस तरह होता है कि जो गुलाब है फूल हमारे साथ, तो इसके जो पत्ते हैं वो हमारे पास हार्डवेयर, लेकिन उसका जो स्मेल है, जो खुशबू है, वो एक सॉफ्टवेयर है. अब जो सॉफ्टवेयर है यानी वो जो खुशबू है वो पुल के बगैर नहीं होता है. तो उस इसी तरह इसको हम महसूस कर सकते हैं बट हम देख नहीं सकते ना, इस खुशबू को टच कर सकते. इसी तरह सॉफ्टवेयर होते हैं. सो हार्डवेयर जो है हमारे पास फिजिकल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर दैट कॉज प्रोसेसिंग ऑफ डेटा, ये डेटा को प्रोसेस करता है. सॉफ्टवेयर क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन that tells the computer exactly what to do, यानी लाइन बाय लाइन इंस्ट्रक्शन होते हैं. हार्डवेयर इज रिपेयर्ड इन केस ऑफ प्रॉब्लम. हार्डवेयर अगर खराब हो जाता है तो इसको हम रिपेयर करते हैं जिस तरह नॉर्मल मशीन होती है. जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसको हम डिबग कहते हैं. तो डिबग और रिपेयर में फ़र्क ये होता है कि उसमें कोई एरर आ जाता है सॉफ्टवेयर में, प्रोग्रामिंग में, तो उसको हम डिबग कहते हैं यानी फिक्स करते हैं दोबारा. Okay, thanks guys. Like and share our videos, and also don't forget to subscribe our channel. Okay, bye bye.